All right, so new topic, vectors. तो वेक्टर्स क्या होता है, यू मस्ट हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस की वेक्टर्स जो होता है दे आर फिजिकल क्वांटिटीज विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. नाउ you can break down physical quantities. Agar if I write some physical quantities, there are many physical quantities that we use in physics. Okay, now you can break them down into two sections. Okay, first one is called a scalar. एक होता है स्केलर, स्केलर्स बोल देता हूँ, ठीक है. एंड द अदर इज वेक्टर्स, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ऑलराइट, नाउ व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? डिफरेंस ये है कि स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए, टू कंप्लीटली define a physical quantity that is a scalar, you only need a magnitude. ठीक है, तो I'll write that point. Only need magnitude for complete description. ठीक है, for complete description we only need magnitude for complete description. It may have a direction, ठीक है, it may have a direction, but the direction is irrelevant, which is मतलब irrelevant in the sense कि उसको describe करने के लिए हमने कोई direction का जरूरत नहीं है, ठीक है. And I'll just write irrelevant. Irrelevant is a strong word. Wait, I'll just mention that it has a magnitude. It may have a magnitude. Okay, I'll give you the examples of that. For example, time. Time has a direction. Time का direction होता है past to future, ठीक है. Then there is something called current. Electric current होता है, ठीक है. तो current, now current is actually something else. It's called a tensor quantity, but it's fine. मैं इसमें अभी for the time being I'll put it in scalars, ठीक है. So I'll mention that it is a tensor quantity. अपने syllabus का नहीं है, ठीक है. It's a tensor. And about this one, मतलब scalars के और examples क्या जानते हैं अपने? मास का कोई डायरेक्शन नहीं है ना. यू डोंट नीड 2 kg इस तरफ, 2 kg उस तरफ, ऐसा तो नहीं बोलते, बस 2 kg बोलते हैं ना. मास हो गया, उसके बाद डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, ठीक है. उसके बाद स्पीड, डेंसिटी, एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है. नाउ अबाउट वेक्टर्स. वेक्टर्स में जैसे इसमें बोला कि इट हैज, देखो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, स्केलर्स की तरह इसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा, बट इट आल्सो नीड्स डायरेक्शन. मतलब क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. नाउ इसके एग्जांपल्स क्या दे सकता हूं? आई कैन राइट द एग्जांपल्स. इसके क्या रहेगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इन सबको ये बताना पड़ता है कि डायरेक्शन किधर है, फोर्स, एक्सेट्रा, ठीक है. ये सारे हो गए. Now there is another very important point that with regards to vectors, that is it should follow the laws of vector addition. अब ये क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है.
vector addition, and in fact I can also write for scalars they follow scalar addition. Okay, I'll tell you what scalar and vector addition are. Okay, follow scalar addition. All right, तो ये बेसिक है वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेक्टर्स, now वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए यूज एरो. Now before I do that, I'm going to give you an example कि what is vector addition exactly. ठीक है, vector addition का significance क्या है वो मैं समझा देता हूँ. And you will also see that although electric current, for example, has a direction, पता है ना, एक वायर में इधर से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा तो पॉइंट बी से पॉइंट ए आएगा. 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाई है तुमने, तो उसमें डायरेक्शन है बट वो वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता. ठीक है, इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेक्टर बिकॉज इट, आई विल राइट दैट पॉइंट specifically, that current does not follow vector addition. Hence it is not a vector. ठीक है, hence it is not a vector. In fact, it follows scalar addition. Okay, so let's see ki what exactly is vector addition. Let's get a feel of what vector addition is. I'm going to use a very simple example for distance and displacement to explain that. Okay, so let's say ki there is a person. Okay, now that person is moving. First case, ठीक है, उसने मूव किया, पहला उसने मूव किया 4 meters ईस्ट मूव किया, देन 3 meters ईस्ट मूव किया. ठीक है, 4 meters ईस्ट मूव किया, फिर 3 meters ईस्ट मूव किया. ऑलराइट, तो इन दिस केस लेट्स सी कि वो कैसे कैसे मूव किया. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, एक सेकंड. हाँ, तो ये पहले कितना मूव किया? ये 4 मीटर ईस्ट मूव किया, उसके बाद 3 मीटर ईस्ट मूव किया. ठीक है, 4 मीटर ईस्ट, देन 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर ईस्ट. ठीक है, so from point A to point B. okay, let's call these 2 points. जो इसका starting point है इसको बोल देता हूँ point A, and इस जो ending point है इसको बोल देता हूँ point B. Now you all know कि what क्या बोलते हैं, what do you mean by displacement? Displacement क्या होता है? It is the line joining the initial point and the final point. So let me just draw the total displacement. तो initial से final point ऐसे गया है ना. तो इसमें अब देख सकते हैं कि नाउ इसमें अभी देख सकते हैं कि इसने टोटल कितना यहाँ से यहाँ कितना गया. देखो, दिस इज बेसिकली 7 meters ईस्ट गया है ना. नाउ आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस को देखो कैसे लिखूंगा. डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं? इट्स अ स्केलर, सो वी डो नॉट नीड द डायरेक्शन. तो ईस्ट से मतलब नहीं है मुझे. ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड this right here. When I say 4 meters east, this is the magnitude and this right here is the direction. ठीक है, तो when I say distance is a scalar quantity, तो मुझे सिर्फ magnitude से मतलब है. तो magnitude कितना गया यहाँ से पहले कितना गया? देखो, 4 meters plus 3 meters, what do you get? 7 meters. ठीक है, no problem there.
ठीक है, क्वाइट दिस वन क्या बोलते हैं उसको, क्वाइट लॉजिकल. Okay, now what about displacement? When I say displacement, I should write 4 meter east plus 3 meter east. So your final displacement is 7 meters east. No problem here. देख सकते हैं कि डिस्टेंस, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहां से देख सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट हियर इज दैट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यू कैन सी दैट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 मीटर्स है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ही है डिस्टेंस का वैल्यू. ठीक है, so that's the first case, quite simple, nothing to worry about. Second case is कि the man moves 4 meters east, then 3 meters west, मतलब वो टर्न किया, राइट. तो let's see what's happening here. तो पहले वो कैसे गया, 4 meters east गया. Let's say this is 4 meters east, 4 meters east. उसके बाद क्या किया वो, he went, he took a turn and then 3 meters west. ठीक है, कितना गया, 3 meters west. तो इसमें अभी देखो कि what is the initial and final point. तो initial point is right here. ठीक है, मैंने एक लाइन में बनाना चाहिए था, this should have been in one line. Just for representation मैंने दो अलग पॉइंट्स माने. तो this right here is point A. ठीक है, इधर लिख देता हूँ point A, and this right here is point B. So you can see that कि the displacement here is this one, and logically you can say कि ये कितना value है. You can see that the net displacement is 1 meter east. तो टोटल 1 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर ईस्ट गया, 3 मीटर वेस्ट वापस आ गया, तो टोटल कितना गया वो 1 मीटर ईस्ट. समझ गए. तो अब मैं देखो इसका डिस्टेंस लिखता हूं तो क्या रहेगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन आई विल राइट व्हाट, ओनली द मैग्नीट्यूड्स, 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर, नो प्रॉब्लम देयर. नाउ बट डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर वेस्ट. What does that give you? It gave you 1 meter east. देख सकते हैं कि 4 plus 3 1 दे रहा है. This is not normal addition. You have considered the direction also. समझ गए ना, तो तुमको पहले डायरेक्शन को कंसीडर करके जब ऐड कर रहे हो तो उसका फिजिकल मीनिंग चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो जा रहा है उसका. ठीक है, I'll give you one more very good example. That is, मान लो कि आदमी 4 मीटर ईस्ट गया, देन 3 मीटर्स नॉर्थ गया. तो अब देखो क्या होगा, आदमी 4 मीटर्स ईस्ट, 4 meters east, then 3 meters north, 3 meters north. ओके, तो देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अच्छा पहले इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देख लेते हैं. इनिशियली कहाँ है, यहाँ पे A, फाइनली कहाँ है, यहाँ पे B. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देता है. So you can clearly see that this is 5 meters. 5 meters क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो इसको ठीक है मैं नॉर्थ ईस्ट लिख देता हूँ अभी फिलहाल, इधर नॉर्थ ईस्ट लिख देता हूँ, बट विल हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. ठीक है,
I'll specify the direction using this particular angle. ये जो angle है, and you can see that this angle is 37 degrees. मैं इसका ट्रिको का वीडियो में बताया ये 37 degrees and north of east ऐसा लिखना चाहिए मुझे, north of east. Okay, तो 5 meters 37 degrees north of east इसका actual displacement हुआ. तो I'll write those points again. What about distance? Distance कितना है? I just had to add 4 meters plus 3 meters, which is simply what? 7 meters. Okay. And what about displacement? Displacement is 4 meters east plus 3 meters north. That gives you 5 meters. 5 meters. तो magnitude और direction कितना स्पेसिफाई करेंगे? 37 degrees north of east. ठीक है, या तो 53 degrees east of north भी लिख सकते हैं. ठीक है, that's your choice. All right. Now इधर से you can also imagine one situation. You can imagine in case मान लो एक आदमी के दो डिस्प्लेसमेंट्स है, एक 4 मीटर और एक 3 मीटर, एक 4 मीटर और एक 3 मीटर. इसमें तुम क्लियरली सोच सकते हो कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल इज 7. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दैट. जस्ट अ मोमेंट, इसको जस्ट अ मोमेंट प्लीज. ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, तो इधर हमने देख लिया कि डिस्टेंस इज व्हाट equal to magnitude of displacement in the first case, है ना, in this particular case. Now the other point that I can write is maximum displacement कितना हो सकता है? maximum displacement कितना हो सकता है? that is 7, है ना, 7 meters east to be specific. and minimum displacement कितना हो सकता है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? 1 मीटर ईस्ट. तुम कोई भी पॉसिबिलिटी देख लो, पहले 4 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद वो नॉर्थ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, साउथ गया, साउथ वेस्ट गया, कहीं पे भी घुमा दो, यू विल सी दैट by analyzing all possibilities, you will see that maximum displacement possible is 7 meters east and minimum displacement possible is 1 meter east, which is simply, if you look at it, this is simply 4 plus 3, which is the sum of the magnitudes, and the minimum displacement है वो क्या होगा? 4 minus 3. ठीक है. Now here, using this particular example, what I wanted to teach you is कि in scalar addition 4 plus 3 हमेशा 7 होगा, but in vector addition 4 plus 3 can be 7, 1, 5, in fact any particular value. Okay, so that's the key point that I wanted to teach you here. तो इधर देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर ईस्ट वो स्पेसिफाई किया है डायरेक्शन के साथ, तो वो 7 मीटर ईस्ट हुआ. and displacement in the second case is 4 meter east plus 3 meter west give you 1 meter east. and then third case देखो 2 dimensional हो गया ये चीज. ठीक है, पहले दो केसेस में 1 dimension है. ठीक है, the third case you can see that 4 meter east plus 3 meters north gave you 5 meters 37 degrees north of east. ठीक है, तो दैट इज द आइडिया ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, डायरेक्शन को इंक्लूड करके जब ऐड करते हो तो यू मे हैव डिफरेंट वैल्यूज. इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मली एडिंग नंबर्स. ओके, ऑलराइट. तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बेसिस पे देख लिया. नाउ जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन ऑल्दो इट हैज अ डायरेक्शन. ठीक है, तो इसलिए उसको वेक्टर नहीं मानते. तो आई लाइक टू expand on that. So let's imagine कि you have a couple of wires. ठीक है, मान लो कि एक जंक्शन है, एक सर्किट में एक जंक्शन है. दिस इज one wire. ठीक है, this is another wire and let's say this is the third wire. ठीक है, there are 3 wires.
Okay, I'll name them wire 1, wire 2 and wire 3. Okay, now here's the thing, मान लो कि वायर 1 में से ऐसा करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स, ठीक है, वायर 1 में से ऐसा करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स एंड वायर 3 में से करंट आ रहा है 3 एम्पियर्स. तो in this case what would be the current through the third wire? You can see that these two currents will add up at this particular junction. ये जो जंक्शन है इस जंक्शन पे ऐड होगा एंड ये दोनों ऐड होके किस तरफ आएगा, इस तरफ. I'll use another color. इस तरफ आएगा एंड ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 5 एम्पियर्स. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है. 3 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया और दोनों ऐड होके क्या हो गया 5 एम्पियर्स आ गए, ठीक है. नाउ यू शुड लुक एट द नेक्स्ट केस. अभी नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है. इसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं. द सिचुएशन इज द सेम, सॉरी, सिचुएशन इज द सेम. वी हैव द सेम सेट ऑफ वायर्स. ये वायर 1, दिस इज वायर 3 and this is wire 2. okay, तो wire 1, 2 and 3. अब मान लो कि ये जो वायर 2 है, वायर 1 है, वायर 1 में से करंट है वही सेम 2 एम्पियर्स, ठीक है. एंड व्हाट आई डू हियर इज कि समहाउ आई फ्लिप्ड दिस 3 एम्पियर. वायर 2 में जो करंट को मैंने चेंज कर दिया आगे, मान लो दिस इज पार्ट ऑफ अ बिग सर्किट में भी, ठीक है. दिस पर्टिकुलर 3 वायर सेटअप इज पार्ट ऑफ अ बिग सर्किट, क्योंकि ऐसा हवा में से करंट नहीं आने वाला. मैंने पूरा सर्किट को नहीं ड्रॉ किया, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सर्किट. आई विल स्पेसिफाई दैट. बाद में मत पूछना ये चीज करंट आया कहां से. पार्ट ऑफ ए सर्किट, ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ अ सर्किट. नाउ समहाउ मैंने कुछ बैटरी चेंज किया व्हाटएवर एंड मैंने जो वायर 2 है उसमें करंट को फ्लिप कर दिया, मतलब दिस इज नाउ गोइंग लाइक दिस 3 एम्पियर. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू वायर 3, तो इट्स क्वाइट सिंपल. अगर यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ पे 3 एम्पियर गया, मतलब 1 एम्पियर आया होगा यहाँ पे, मतलब ये 3 में देखो करंट देखो ऐसे आया होगा, कितना आया होगा 1 एम्पियर. You can see that from this particular exercise, इस particular example से what I'm trying to show you is कि direction of current is important. क्योंकि उसका डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक को फ्लिप करने से दूसरा चेंज हो रहा है. बट इट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन, बिकॉज अगर मैं एक केस में, मान लो इसी केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आई डू इज आई चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ वायर 1, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ वायर 1. मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने वायर 3 और वायर 2 को एज इट इज रखा, ठीक है. वायर 3 एंड वायर 2 को एज इट इज रखा, मैंने कोई चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है. बट लेट्स से कि मैंने वायर 1 को ऐसा कर दिया, ठीक है. मतलब दिस राइट हियर इज वायर 1, सॉरी वायर 1, वायर 2, दिस इज वायर 3, ठीक है. एंड इसमें देखो मैं कलर, ये भी सिचुएशन भी सेम रखता हूँ. 1 से 1 में करंट ऐसा आ रहा है, कितना 2 एम्पियर्स. 2 में कितना आ रहा है 3 एम्पियर्स. यहाँ पे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे ऐड होके, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे ऐड होने के बाद वो कितना हो जाएगा, सॉरी
5 amperes, राइट? कितना हो जाएगा? 5 amperes. ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक काम करता हूँ, नंबर दिस, क्या बोलते हैं, सिचुएशन. दिस इज सिचुएशन ए, this is situation B, and this is situation C. Okay, now what's so special about situation A and C? A and C में क्या किया मैंने, इसको change the orientation of wire 1 and you get this one, है ना? That's it. Now if you look at it, situation A पे, situation A में अगर मैं इस करंट के बारे में बात करूं तो इसका डायरेक्शन का सेंस क्या है? दिस इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, है ना? लेट्स अज्यूम आर नॉर्मल डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? देखो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? दिस इज गोइंग साउथ. ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? दिस इज गोइंग साउथ वेस्ट, है ना? दिस इज गोइंग साउथ वेस्ट. नाउ मैंने देखो इसको 3 एम्पियर को सेम रखा, साउथ वेस्ट ही जाने दिया उसको, ठीक है? अब मैंने 2 एम्पियर करंट का डायरेक्शन देखो क्या कर दिया, मैंने इसको साउथ ईस्ट कर दिया. देख सकते हैं, एक सेकंड, इसके डायरेक्शन को देखो क्या कर दिया मैंने, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना ये. यू कैन सी दैट दिस 2 एम्पियर इज मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बट स्टिल यू गॉट दैट 5 एम्पियर इज स्टिल गोइंग साउथ. देख सकते हैं ना? तो हियर यू कैन सी दैट वायर का ओरिएंटेशन चेंज किया, करंट का स्पेस में डायरेक्शन चेंज हुआ, बट उससे वैल्यू नहीं चेंज हुआ. समझ रहे ना? अनलेस यू फ्लिप दी करंट इनसाइड दी वायर इटसेल्फ, तभी वो उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है दूसरे वायर्स पे, ठीक है? तो इसमें देख सकते हैं, इफ यू एनालाइज ए एंड सी, सिचुएशन ए एंड सी, द आउटकम इज सेम. सिचुएशन ए एंड सी, आउटकम इज सेम, irrespective of डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन के बदले तो बेटर वर्ड इज ओरिएंटेशन, irrespective of orientation of wire 1. इसलिए देख सकते हैं कि दिस इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन. इधर से क्लियरली दिख सकता है करंट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन, इट इज फॉलोइंग व्हाट? स्केलर एडिशन. इधर भी देखो क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, यू कैन राइट हियर 2 + 3 = 5 आया, और इधर भी वही चीज चल रहा है, 2 + 3 = 5. डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है. इट वाज लाइक सिमिलर टू डिस्टेंस ऐड करने जैसा, ठीक है? और बी जो केस है वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट एडिंग लाइक वेक्टर्स, ठीक है? तो इधर आई कैन राइट कि does not follow vector addition. ठीक है? I hope you understood this. Okay, now let's see how do we represent vectors. ठीक है? तो next step, representation of vectors. Representation of vectors. All right, now तो vectors को represent करते हैं. There are 2 ways of representing it. The first way is geometrically. कैसे represent करते हैं, ठीक है? तो geometrically it is represented using an arrow. That's it. किससे represent करेंगे? arrow से. तो अगर मान लो एक वेक्टर है, this is the vector right here. तो ये जो वेक्टर है इसको, this is our vector, and इसका देख सकते हैं कि you can see two parts here. First part is this one. This is called the head of the vector. इसको कहते हैं head, ठीक है? And this right here is called the tail of the vector. ठीक है? This is the tail of the vector. Now
इधर से ज्योमेट्रिकली यू कैन विच इज दिस इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं लॉजिकल दैट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम टेल टू हेड टेल टू हेड का डायरेक्शन है वेक्टर का समझ गए ना बहुत लॉजिकल इसलिए तो एरो मारा उसको ठीक है तो डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम टेल टू हेड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड का बात करूं तो आई लव टू बी स्पेसिफिक इसका जो लेंथ है ना इस पर्टिकुलर वेक्टर का जो लेंथ है ये वाला दिस लेंथ हेड टू टेल का जो लेंथ है ये क्या हो गया इसका लेंथ इसका लेंथ ऑफ द एरो हुआ तो मैग्नीट्यूड इज शोन बाय द लेंथ लॉन्गर द एरो मोर द मैग्नीट्यूड दैट्स इट ठीक है बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से एक डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर ईस्ट 1 मीटर ईस्ट 1 मीटर ईस्ट को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से दिस इज 1 मीटर ईस्ट ठीक है देन व्हाट विल बी 3 मीटर्स वेस्ट 3 मीटर्स वेस्ट 3 मीटर्स वेस्ट मतलब क्या करेंगे इसका डायरेक्शन फ्लिप कर दो एंड इसका साइज 3 गुना बड़ा करो मतलब इट वुड बी लाइक दिस 3 टाइम्स ठीक है दिस इज आर 3 मीटर्स सॉरी हाँ so this is our just a moment so 3 times just to give you a sense this right here is 3 meters west ठीक है तो एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए मैंने बताया ओके नाउ व्हाट अबाउट हाफ अ मीटर साउथ मैं ये भी लिख देता हूं आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल लेट्स से 0.5 meters साउथ 0.5 मीटर्स साउथ डायरेक्शन में हाफ अ मीटर मतलब ये ऊपर का रेफरेंस जो एरो लिया हमने 1 मीटर का एरो इस तरह से तो हाफ ऑफ दैट ठीक है सो दैट इज गोइंग टू बी 3 मीटर्स साउथ ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन नाउ अभी the other representation that you need to know is the mathematical representation ठीक है mathematical representation तो mathematically इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यू राइट देयर आर 2 ways of writing that the first way is you write it like this मान लो कि एक वेक्टर a है ठीक है when I say वेक्टर a को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ऐसे a लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसको या फिर a को बोल्ड में लिखेंगे ठीक है a को ये थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है एनीवे जस्ट तुमको समझाने के लिए ठीक है ये क्या होगा दिस इज इन बोल्ड मैं ये बता रहा हूं कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि ए के ऊपर एरो मारने के बदले उसको बोल्ड में लिखते हैं बोल्ड में लिखने का मतलब वो वेक्टर हुआ ठीक है तो या तो वेक्टर ए मतलब ए के ऊपर एरो या फिर उसको बोल्ड में लिखेंगे नाउ किसी भी वेक्टर को ध्यान से देखना मैं एरो वाला यूज करता हूं पर्सनली किसी भी वेक्टर को ऐसा लिख सकते ए वेक्टर इज इक्वल टू ए
into a cap, ठीक है, इसको कहते हैं a cap. Now you can see that this right here is our vector. This is our original vector, ठीक है. This is our vector. Now ये है ना without the arrow, इसको ये क्या हो गया? This is our magnitude, ठीक है. And this right here is the direction, ठीक है. This right here is the direction. And इसका जो दूसरा नाम होता है इसको कहता है यूनिट वेक्टर. इसको कहते हैं क्या? यूनिट वेक्टर. I'll give you a good example. Example, displacement is equal to 3 meters east. तो क्या हो गया? वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर हो गया. This right here is our vector. ये क्या होगा? This 3 meters क्या हो गया? This is our magnitude. एंड ईस्ट क्या हो गया? अपना यूनिट वेक्टर हो गया, या तो डायरेक्शन लिख देता हूं, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. समटाइम्स इधर थोड़ा जगह कम है, तो आई विल राइट इट समवेयर हियर, विल यूज अ न्यू पेज. इट इज आल्सो रिटन लाइक दिस. क्या बोलते हैं? ए, व्हेन आई से this one, if I write it like this, a का modulus, this basically means magnitude of vector a, या magnitude of a. मतलब you can also write it like this. मतलब या तो magnitude को क्या लिख सकते हो? a modulus लिख सकते हो, या फिर just a, ठीक है. तो again I'll represent this vector. Vector को क्या लिख सकते हैं? Vector can be written as a cap लिख सकते हैं, और you can write it like this, a का modulus a cap. They both mean the same thing. मैं personally ये modulus वाला नहीं लिखता, मैं सीधा a लिख देता हूँ, ठीक है. It's your choice. कुछ बुक्स में a का modulus करके लिखते हैं, basically implying that it is magnitude. Okay, तो इसमें hope you understood this one now. And हाँ, to talk a little more about unit vectors, इसके बारे में भी मैं एक चीज बोल देता हूँ. यूनिट वेक्टर को देखो कैसे लिख सकते हैं. talk about unit vectors. यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें तो ये जो a कैप है, तो इधर a वेक्टर क्या है? a वेक्टर इज इक्वल टू a टाइम्स a कैप. What does that imply? A cap is equal to a vector by magnitude. मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है? I'll write it in letters कि वेक्टर a by magnitude of a. वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है. इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना. फाइंड, एक क्वेश्चन जैसा लिख रहा हूं, फाइंड द फोर्स वेक्टर of magnitude 10 Newton. Find the force vector of magnitude 10 Newton along the displacement vector s vector is equal to 4 meters north. 4 meters north के along, या north थोड़ा ये confuse हो जाओगे, I'll use something else, maybe west. 4 meters west. Okay, so find the force vector of magnitude 10 Newton along the displacement vector s.
वेक्टर इज इक्वल टू 4 मीटर्स वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक ऐसा फोर्स निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो, बट डायरेक्शन किसके अलावा हो, इस गिवन डिस्प्लेसमेंट के अलावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर क्या हो गया, इधर से ये डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है 4 मीटर्स वेस्ट बाय मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर्स, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन पे है ना। सो द फोर्स वुड बी, जो अपना फोर्स वेक्टर है जिसको ढूंढ रहे हैं अपने, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है इसका 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, एंड डायरेक्शन कितना है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग विच इज वेस्ट। ठीक है, सो दैट वुड बी योर आंसर। आई यूज्ड अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स एंड आल्सो द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, ओनली डायरेक्शन देना। एंड ऑल्सो इसमें एक चीज बता दूं कि यूनिट वेक्टर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता देता हूं कि इट हैज नो, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। इधर मैं 2 पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, इसलिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुम। जैसे इस ऊपर वाले केस में क्या किया तुमने, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, तो उसको हमने 1 वेस्ट करके वेक्टर नाम दे दिया और उसके साथ 10 न्यूटन मल्टीप्लाई किया, समझ गया ना। तो इसलिए उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। एंड दूसरा पॉइंट कि this might seem confusing, it has no units like मीटर और मीटर पर सेकंड और न्यूटन, ऐसा कोई यूनिट नहीं होता यूनिट वेक्टर का। अभी वेस्ट का कोई यूनिट थोड़ी है, वेस्ट एक डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो ऑलराइट, नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, तो 2 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेफरेंस फ्रेम्स पढ़ेंगे अपने। सबसे पहला जो है, फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, CS लिख दे रहा हूं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान से देखना, देयर आर 3 एक्सिस। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देयर आर 3 एक्सिस इन 3D प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस, y axis and z axis। ठीक है, this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis, and the intersection point is called the origin O। ठीक है, any point, ये इसमें देखो अभी ये 3 एक्सिस है, ऑलराइट, there are 3 axes। So if I am talking about one dimensional motion, if I am talking about just one dimensional motion, ठीक है, one dimensional motion के लिए, तो I can either use x or y or z।
ठीक है, वन डायमेंशनल मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में देर आर ओनली टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शंस, कौन सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन आई टॉक अबाउट 2D, 2D मतलब क्या हो गया, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। ये क्या हुआ, अपना प्लेन हुआ, ठीक है। एंड इसमें तो इन्फाइनाइट डायरेक्शंस हुए, तो इसमें देयर इज नो वे कि पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें बताने पड़ेंगे, ठीक है। एंड 3D तो क्या हो गया, 3D इज सिंपली स्पेस, तो इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों चाहिए होंगे अपने को, एक्स वाई जेड सब चाहिए होगा, है ना। एंड अगेन दिस इज बेसिकली व्हाट, स्पेस। एंड इसमें क्या रहेगा, अगेन इन्फिनिट डायरेक्शन है। नाउ व्हाट वी डू इज कि वी ब्रेक वॉट एवर, कोई भी रैंडम सा डायरेक्शन को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। वो तोड़ने को कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वी नीड टू हैव दी रेफरेंस डायरेक्शंस, ठीक है। द रेफरेंस डायरेक्शन, द रेफरेंस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस के अलोंग जाना, वाई एक्सिस के अलोंग जाना और जेड एक्सिस के अलोंग जाना। अगर तुम एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, ध्यान से देखना इस चीज को, मान लो तुम एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो ऐसे, ये एक डायरेक्शन हुआ। अगर तुम वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हो तो ये भी एक डायरेक्शन हुआ। और अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो ये एक तीसरा रेफरेंस डायरेक्शन हुआ। देयर आर 3 रेफरेंस डायरेक्शंस। नाउ डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो हमें 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करना है, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस एंड वन अलोंग जेड एक्सिस। द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप, ठीक है, आई कैप। और कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं ना, एक्स कैप भी लिखते हैं, और कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं, ई एक्स कैप लिखते हैं। तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आई कैप, एक्स कैप या ई एक्स कैप। आई पर्सनली यूज आई कैप, ठीक है। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से डिनोट कर सकते हैं, जे कैप या फिर वाई कैप या फिर ई वाई कैप, ठीक है। अगेन योर चॉइस, बट पर्सनली एंड 90% बुक्स में आई कैप जे कैप यूज होता है। एंड इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग के कैप से डिनोट कर सकते हैं, या फिर जेड कैप से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ई जेड कैप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली व्हेन आई से, ध्यान से सुनना, व्हेन आई से, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 3 meters displacement along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर्स, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। 3 मीटर्स एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अनदर एग्जांपल दैट आई वुड टेक इज कि 10 न्यूटन फोर्स along नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है, देखो जे कैप मतलब ऊपर की तरफ हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो माइनस जे कैप डायरेक्शन हुआ, माइनस जे कैप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -10 न्यूटन जे कैप। ये नेगेटिव बेसिकली इंप्लाइज कि वो जे कैप के ऑपोजिट जा रहा है। क्या तुम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आया?
ऑलराइट, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुमको मालूम होना चाहिए. दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल x, y and z axis should be mutually perpendicular. एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वरना एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकता है ये. ऑलराइट, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि x, y एंड z, ये ऑर्डर x to y, y to z and z to x, this should follow the right hand thumb rule. Right hand थंब रूल कैसे है मैं बता रहा हूं, ठीक है. बस बेसिकली क्या है मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं उसको क्या बोलते हैं लिख देता हूं पॉइंट क्या है करके. मान लो कि अब मैं थंब नहीं बना, हाथ नहीं बनाने वाला, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, ठीक है. बस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. दिस इज द x and y axis and this right here is the z axis, ठीक है. नाउ अगर तुमने चारों फिंगर्स को, ठीक है, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है. इधर मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं. इफ यू कर्ल the four fingers of your right hand from x-axis towards y-axis, then the thumb should point towards z axis. इसका मतलब क्या है समझने का कोशिश करो. अगर मान लो तुमने चारों फिंगर्स को इस तरफ x to y कर्ल किया, ये तुम्हारे चार फिंगर्स है, ठीक है. व्हाट आर दीस, ये तुम्हारे 4 फिंगर्स है. इसको x एक्सिस पे फैला के पहले तुमने क्या किया था, तुमने x एक्सिस की तरफ पॉइंट किया था, उसके बाद उसको कर्ल कर दिया और ऐसे कर दिया, समझ गए ना. तो तुम्हारा जो थंब है, द थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द z एक्सिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज फॉलो होना जरूरी है. ओके, तो नेक्स्ट जो है दैट इज आर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. प्लेन पोलर, दिस इज ओनली फॉर प्लेन, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होता है, सिलिंड्रिकल पोलर एंड स्फेरिकल पोलर, वो करने का जरूरत नहीं है. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट 2 डायरेक्शंस, ठीक है. sorry, just one plane. So let's say this is our y axis, x axis के बेसिस पे ही मैं बता देता हूँ, ठीक है. या फिर I'll generalize this, generalize ये करता हूँ कि imagine करो कि this is a line, this is a reference line, ठीक है. This is our reference line, ठीक है. एंड जनरली ये x एक्सिस होता है, ऑलराइट. एंड दिस राइट हियर इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है. नाउ
अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करना है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, ओके, दिस इज पॉइंट P, तो इस पॉइंट P के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख सकता हूँ इस पॉइंट के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके मैं लिख सकता था। एंड दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओरिजिन से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, एंड रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेके मैंने इसको थीटा ले लिया, ठीक है, थीटा। तो ये हो गया आर एंड ये हो गया थीटा, दैट्स इट। So if you know r and you know theta, you can pinpoint the position of this point P, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अगर ये एक्सिस होता, इफ लेट्स से कि दिस वाज द x and y and z एक्सिस, तो ये क्या होता सिचुएशन, सॉरी, अगर ये x y z एक्सिस होता, मान लो कि इफ दिस हैड बीन ओरिजिन है, इफ दिस हैड बीन द x एक्सिस एंड दिस हैड बीन द y एक्सिस, ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसा, एंड देख सकते हो कि यहां से अगर मैं जस्ट अलग से बना दे रहा हूं ऐसे, लाइक दिस, तो ये दिख रहा है कि दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी, दिस पर्टिकुलर हाइट इज गोइंग टू बी y एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x, ठीक है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x। तो इसके बीच का रिलेशंस देखो क्या लिख सकते हैं, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन x y एंड r एंड थीटा। तो द रिलेशन दैट यू कैन सी इज फ्रॉम द ट्राइंगल, you can see that कि r सॉरी x by r क्या है, cos थीटा, मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया r cos थीटा। दूसरा क्या है, y by r इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r साइन थीटा, समझ गए। एंड ये तो हो गया, अगर तुमको r और थीटा पता है तो x और y निकाल सकते हो। एंड अगर तुमको x और y पता है और r और थीटा निकालना है, तब इसमें से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड तीसरा चीज जो देख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। दीज आर द पॉसिबल रिलेशंस। इस चीज को समझने का कोशिश करो। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, प्लेन में कोई भी पॉइंट हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। अगर प्लेन में दो पॉइंट्स है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स एंड वाई। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई होता क्या है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है वाई से दूरी, और वाई का मतलब क्या होता है, एक्स से दूरी। ये तो पढ़ा है तुमने 10th स्टैंडर्ड में ना। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आर एंड थीटा यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई। वील राइट पी आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से कितना दूर और रेफरेंस लाइन से कितना एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा के बारे में अगर लिखूं तो, थीटा के बारे में लिखूं तो थीटा पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बारे में हमने ट्रिगो में भी देखा था, राइट। तो देखो आर और थीटा से भी तो तुम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो ना। इस पे बात आता है कि यूनिट वेक्टर्स कौन से। तो देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स इन्वॉल्व। इस पे दो यूनिट वेक्टर्स है, एक है आर कैप। आर कैप क्या है, इट शोज द डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, ठीक है। तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या हुआ, देखो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन ये है, तो दिस इज आर कैप। एंड जो दूसरा यूनिट वेक्टर है वो है थीटा कैप, दिस इज आर
थीटा कैप, थीटा कैप क्या है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर, आर या आर कैप लिख देता हूं, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर कैप इन द सेंस ऑफ थीटा। तो मतलब ये देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में थीटा के एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर जो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर टू आर कैप के परपेंडिकुलर, एंड इट शुड बी इन द सेंस ऑफ थीटा। सो दिस पर्टिकुलर इज our theta cap, and you can clearly see कि these are mutually perpendicular, देख सकते हैं they are mutually perpendicular. Now फर्क क्या है आई कैप और जे कैप एंड एक्स कैप एंड सॉरी आई कैप जे कैप और थीटा कैप आर कैप में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आई कैप एंड जे कैप जो है वो स्पेस में फिक्स्ड रहेगा, देख सकते हैं इधर आई कैप जे कैप का डायरेक्शन फिक्स्ड रहता है, बट इसमें थीटा कैप आर कैप का हर पॉइंट के लिए चेंज होगा। ये जो है हम लोग सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, तभी उस टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, व्हाट द रिलेशन इज। So this is just an idea to show you that this is one more coordinate system in इसके साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही साथ एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका नंबर